زلزلے کے 36 جھٹکوں کے بعد کراچی کے کچھ علاقوں کی زمین دھسنے کی حقیقت کیا؟ کراچی، لانڈھی اور ملیر کے دھسنے کا خطرہ بڑھنے لگا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں؟ کراچی زلزلوں کی زد میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ کراچی میں پھر زلزلے کا جھٹکا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کراچی میں بڑے زلزلے کی پیشگوئی شدت کیا ہوگی؟ ماہرین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنزا دشے۔ ویورز، کراچی کی تاریخ میں پہلی بار محض 2 ہفتوں میں 36 سے زائد زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ 1 جون سے شروع ہونے والے اس سلسلے کے دوران کراچی کے مشرقی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلوں کی شدت 1.5 سے 3.6 کے درمیان رہی اور یہ جھٹکے مختصر دورانیے کے تھے۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بعض ایسی خبریں اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں زمین دھسنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق زلزلے کے بعد زمین کے دھسنے، زمین بیٹھنے یا کھوکھلے ہونے کی چند ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ زلزلوں کے دوران زمین کے اندر موجود چٹانیں یا مٹی کے تہیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، جس سے اندر خالی جگہیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے باعث زمین کی اوپری سطح دھس سکتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں زیر زمین پانی زلزلے کے دوران یا بعد میں اچانک جذب یا خارج ہو جائے تو اس سے زمین کی مضبوطی متاثر ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر نرم یا ریتلی یا نم زمین زلزلے کی صورت میں مائع جیسا رویہ اختیار کر لیتی ہے، جسے لیکویفیکشن کہا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں زیر زمین چونے یا نمک کی تہیں موجود ہوتی ہیں جن میں پانی کی موجودگی غاریں پیدا کر دیتی ہیں۔ زلزلے کی صورت میں یہ غاریں بیٹھ جاتی ہیں اور سطح زمین دھس جاتی ہے۔ یہ زلزلے کراچی کے مختلف علاقوں بشمول قائد آباد، گڈاف، ملیر، ڈی ایچ اے اور کرنگی میں محسوس کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پہاڑی یا ڈھلوان علاقوں میں زلزلے کی وجہ سے زمین کھسک سکتی ہے، جس سے زمین کا بڑا حصہ نیچے کی طرف سرک جاتا ہے۔ سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ امیر حیدر لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمین کا اٹھنا یا بیٹھنا ایک قدرتی عمل ہے، جیسے ہمالیہ کی بلندی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جب زمین کا ایک حصہ نیچے جاتا ہے تو دوسرا اوپر آتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ نے مزید بتایا کہ ہم نے مختلف اسٹیشنز پر آلات نصب کیے ہوئے ہیں اور زلزلوں کی سائنسی جانچ جاری ہے۔ کراچی میں حالیہ زلزلوں کے بعد زمین پر ایسا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا جو خطرناک ہو۔ سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں فالٹ لائن متحرک ہے، یہی وجہ ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں۔ تاہم یہ ایک قدرتی عمل ہے جو دنیا کے کئی ممالک جیسے جاپان، انڈونیشیا، بھارت اور امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ نے عوام میں پھیلنے والے خوف کے بارے میں کہا ہے کہ اگر 36 زلزلے آنے کے باوجود بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی سنگین خطرہ ہوتا تو بلند عمارتیں خود بخود گر جاتی۔ انہوں نے زور دیا کہ کراچی میں بیشتر تعمیرات بغیر منصوبہ بندی اور بنا نقشے کے کی گئی ہیں، اس لیے اگر کسی کچی آبادی میں دیوار میں دراڑ آ جائے یا گر جائے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں۔ سنگاپور میں ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے ماہرین ارضیات دعویٰ کیا ہے کہ کراچی کے علاقے لانڈھی ملیر 2014 سے 2020 کے دوران 7.15 سینٹی میٹر دھس چکے ہیں۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق ان علاقوں کے دھسنے کی رفتار چینی شہر تیانجن کے بعد دنیا میں تیز ترین ہے۔ اس کی وجہ زیر زمین سے پانی نکالنا اور نئی بلند عمارتوں کی تعمیر ہے۔ کراچی کا 3 ارضی پلیٹوں انڈین، یورشین اور اربین کے باہمی ٹکراؤ کے مقام پر قریب واقع ہونا بھی وجہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی نکالنے اور عمارتیں بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں شہر کے مزید علاقے دھسنے کے علاوہ زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، جن میں سمندری پانی میٹھا بنانے کے پلانٹ لگانا اور بلند عمارتوں کی تعمیر پر پابندی شامل ہے۔ کراچی میں پیر 5 جون کو بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد گزشتہ دنوں سے محسوس کیے جانے والے جھٹکوں کی تعداد 28 ہو گئی تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 2.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز جنوبی ملیر میں 5 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ کراچی کے علاقے ملیر میں اتوار سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، جن کی شدت زیادہ سے زیادہ 6.3 ریکارڈ کی گئی۔
इस हवाले से शहरियों में परेशानी की लहर पाई जाती है। ताहम मेट ऑफिस का कहना है कि सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर हो जाएगी, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ मेट महर साहिबजाद खान ने कहा था कि शहर में मामूली नोयत के झटके आइंदा चंद रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। ताहम इन झटकों की शिद्दत में बतदरीज कमी के साथ साथ सूरत-ए-हाल बेहतर होती दिखाई देगी, लिहाजा शहरियों को इस सिलसिले में घबराने की जरूरत नहीं। कराची में ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल से इब्तदाई तौर पर 200 से जायद कैदी फरार हो गए थे, जिनमें 78 से जायद मफरूर कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। फरार होने के दौरान एक कैदी हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए थे। सिंध हुकूमत ने कैदियों के फरार के बायस गफलत बरतने पर IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया था, जबकि सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल और DIG जेल खानाजात को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन कराची में कायदाबाद और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके रात के 1:44 पर महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.2 रिकॉर्ड की गई थी। ज़लज़ला पेमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ला मलीर और एतराफ के 1 किलोमीटर इलाके में आया। ज़लज़ले के बायस किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की फिलहाल कोई इतलात नहीं है। डायरेक्टर ज़लज़ला पेमा मरकज़ डॉक्टर नजीब अहमद ने बताया था कि ये फॉल्ट लाइन मामूल पर वापस आ रही है। कराची और गिरदोनवा में 3 से 4 रोज तक ज़लज़ला आने का खदशा है, ताहम इनकी नौयत मामूली से मुअतदिल होगी। उनका कहना था कि शहर में गुज़श्ता चंद रोज से ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं, जिनकी गहराई 10 किलोमीटर जबकि मरकज कायदाबाद, गुडाब और DHA थे। इससे कबल निजी इदारे अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर ने शहर में शदीद ज़लज़ले का खदशा जाहिर किया था। अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर के CEO मोहम्मद शहबाज लगारी ने खबरदार किया था कि कराची में आने वाले हालिया ज़लज़लों को नजरअंदाज ना किया जाए। शहर में ज्यादा शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं, ताहम छोटे ज़लज़ले बड़े ज़लज़लों के इम्कान को कम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम पर खौफ और हरास फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, ताहम हम पेश के इत्तला के जरिए हुकूमत और अवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तरफ माइल करते हैं। उनका कहना था कि अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर ज़लज़ले की पेश की इत्तला देने वाला दुनिया का पहला रिसर्च सेंटर है, जिसके सबूत का रिकॉर्ड उनके YouTube चैनल EQQN पर मौजूद है। निजी इदारे अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर ने रवा हफ्ते कराची में शदीद ज़लज़ले के इम्कान पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे नज़रअंदाज न करने का मशवरा दिया है, क्योंकि ये झटके किसी बड़े ज़लज़ले का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर के सरबराह शहबाज लगारी ने खबरदार किया कि कराची में हालिया ज़लज़लों को नज़रअंदाज ना किया जाए। ज़लज़ले का मरकजी मकाम महवर कहलाता है, जबकि महवर के एन ऊपर के मकाम को ज़लज़ले का मरकज या एपीसेंटर कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक 3 तरह की लहरें ज़लज़ले का बायस बनती हैं, जिन्हें साइस्मिक वेव्स कहा जाता है। इन्हें PS और L वेव भी कहा जाता है। ये लहरें महवर तमाम एतराफ में फैलती हैं। ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का इन्हिसार उसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई और शिद्दत पर होता है। सतह ज़मीन से गहराई जितनी कम होगी, सतह ज़मीन के ऊपर तबाही उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए? ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन नहीं, लेकिन मुनासिब तैयारी और एहतियात से जानी और माली नुकसान को कम किया जा सकता है। व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं और ज़लज़ले के दौरान और बाद में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन नहीं, लेकिन मुनासिब तैयारी और एहतियात से जानी और माली नुकसान को कम किया जा सकता है। दरअसल में ज़लज़ले से पहले, दौरान और बाद में इख्तियार करने वाली तदाबीर दी जा रही हैं। ज़लज़ले से पहले की तैयारी: घर की तामीर में मियारी मवाद इस्तेमाल करें। ईंटों, सीमेंट और लोहे को मियारी रखें। इमारतों में ज़लज़ला प्रूफ डिज़ाइंस अपनाएं। ज़रूरी सामान तैयार रखें। फर्स्ट एड बॉक्स, पानी, खुश खुराक, टॉर्च, बैटरियाँ और ज़रूरी अद्वियात का ज़ख़ीरा, अहम दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, जायदाद के कागजात महफूज जगह पर रखें। ख़ानदानी इमरजेंसी प्लान बनाएं। घर से बाहर मिलने की मुकर्ररा जगह तय करें। बच्चों और बुजुर्गों की खुसूसी देखभाल का इंतजाम करें। ज़लज़ले के दौरान बचाव के तरीके: अगर घर के अंदर हों, फौरन किसी मजबूत फर्नीचर, मेज, बेड के नीचे छुप जाएं और सर को हाथों से ढांप लें। खिड़कियों, दरवाजों और भारी फर्नीचर से दूर रहें। लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर खुली जगह पर हों तो इमारतों, बिजली के खंभों या दरख्तों से दूर रहें। जमीन पर बैठ जाएं और सर को ढांप लें। अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी को फौरन रोककर खुली जगह पर खड़ी करें। ज़लज़ले के बाद की एहतियाती तदाबीर: घर या इमारत में फौरन दाखिल ना हो।
जब तक यकीन ना हो कि इमारत महफूज है, अंदर ना जाएं। गैस, बिजली और पानी के मेन स्विच बंद करें। अगर बू या आवाज से गैस लीक का शुबा हो तो फौरन मुतल्लिका इदारों को इत्तला दें। जख्मी अफराद की मदद करें। अगर कोई जख्मी है तो उसे महफूज जगह पर ले जाएं और फर्स्ट एड दें। शदीद जख्मियों को हिलाने से गुरेज करें, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। अफवाहों पर अमल ना करें, सिर्फ सरकारी इदारों, NDMA, PDMA या मोतबर खबरसाज ज़राए से मालूमात लें। खास हिदायत बराए बच्चे और बुजुर्ग बच्चों को सिखाएं। ज़ल्ज़ला आने पर घबराने की बजाय महफूज जगह पर छुपना, वालिदैन या असातिज़ा की हिदायत पर अमल करना, बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनके करीब इमरजेंसी सामान रखें। अगर वो चलने फिरने से माजूर हैं तो उन्हें महफूज जगह पर मुंतकिल करें। हुकूमती और समाजी जिम्मेदारियाँ। इमारतों के ज़ल्ज़ला रेजिस्टेंस कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। स्कूलों, दफातर और अवामी मकामात पर ज़ल्ज़ला ड्रिल्स का एहतमाम किया जाए। ज़ल्ज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ फंड्स मुख्तस किए जाएं। याद रखें, ज़ल्ज़ला अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। हमें चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रहमत के लिए दुआ करें। अगर आपके इलाके में ज़ल्ज़ले का खतरा हो तो महकमा मौसमियात या NDMA की वेबसाइट से मुस्तनद मालूमात हासिल करें। तो व्यूअर्स, आपको कराची में हालिया ज़ल्ज़लों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।